Hello, I'm Dr. Balaji Romte, a practicing obstetrician and associate professor at Government Ayurved College, Dharashur. Today we discuss about endocrinological application in day-to-day OBGYN practice. Because endocrinology is not a separate branch in obstetric and gynecology. Every physiological and also pathological process in OBGYN is hormonally regulated. Our specialty fundamental is hormone and its signaling and its response. From puberty, reproductive years, pregnancy, and menopause is all depend on the hormones. Basic endocrine principle clinically improve decision making. Proper endocrine understanding help us to prevent any complication in pregnancy as well as fetal outcomes. In these lectures, I had divided into two parts. First is dedicated to obstetrics, and second is dedicated to gynecology. In obstetric part, we are focusing about routine endocrine reports. First is hypothyroidism, second is GDM, and third one is the placental hormones and its application. In organic parts, we discussing most common is PCOD, second is anovulatory cycle, prolactia, hyperprolactinemia, third one is gonadal dysfunction. Let's we start from the obstetrics. First is hypothyroidism. Majority cases are subclinical because pregnancy masks the changes and symptoms of hypothyroidism. Recommended is doing the ultra TSH, not routine TSH. Is most important. Do the ultra TSH screening. Uh, Time to screen, there is a trimester specific target is less than 2.5. Second and third trimester is 3 milli international unit per liter. Ideal approach, generally ideal is do the ultra TSH preconceptionally, because first month fetus is 100% depend on maternal T4. Delay in diagnosis miss the neurodevelopmental window. Basically, for any patient who is a history of BOH or any toxemia in previous pregnancy, we have advised the patient कि आप पहले ही अल्ट्रा टीएसएच कर लो प्री कंसेप्शनली. जैसे आप फॉलिक एसिड देते हो प्री कंसेप्शनली, वैसे ही आप अल्ट्रा टीएसएच करके जो भी आपका अल्ट्रा टीएसएच आएगा उसको सप्रेस करो अप टू द 2.5. आपको क्यों पहले प्री कंसेप्शनली करना है? बिकॉज वी सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. बिकॉज आप अगर हाइपोथायराइडिज्म अनट्रीट करते हो तो बेसिकली वो क्या करेगा, लोअर इन इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक इन्वेजन, प्लासेंटल डिसफंक्शन, डिफेक्टिव स्पाइरल आर्टरी मोल्डिंग that causes preeclampsia, abortions, IGR, and preterm birth. That's why we have to treat ultra TSH before or preconceptionally, because TSH alter the ovarian corpus luteum function and progesterone support that causes the early failure. So आपको क्या करना है कि जैसे ही पेशेंट फर्स्ट विजिट को आएगा उसका अल्ट्रा TSH तो करना है, लेकिन कोई पेशेंट आपके पास प्रीक्लाम्शिया का हो गया है, डिलीवर्ड हुआ है, तो उसको पहले ही रिकमेंड करो कि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्री कंसेप्शनली आप मेरे पास आओ, आप अल्ट्रा टीएसएच कर लो. अगर उसका वॉल्यूम मोर देन 2.5 है तो उसको सप्रेस करो बिफोर कंसेप्शन अप टू 2.5. So next, jump on most biggest endocrine gland, that is placenta. We all know the placental hormone. आप मार्कर के लिए वो चेक करेंगे. प्लासेंटा क्या सीक्रेट करेगा? बीटा एचसीजी, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन. वो बेसिकली वो रेगुलेट करेगा इम्प्लांटेशन, प्लासेंटल एंड प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, मेडिकल मैटरनल मेटाबॉलिक एडेप्टेशन. एज मार्कर फॉर दिस इज ऑल द मार्कर्स ऑफ प्लासेंटल डिसफंक्शन. आपका क्लिनिकल रिवेलेंस क्या रहेगा? एब्नॉर्मल हार्मोन लेवल ऑफन प्रेडिक्ट एबॉर्शन, प्रीक्लाम्सिया, आईजीआर. जनरली आप जो भी मार्कर है वो प्रेडिक्ट क्या करते हो? आप सेकेंड ट्राइमेस्टर या डबल मार्कर भेजते हो या ट्रिपल मार्कर भेजते हो, आईजीआर या क्वार्टर पेड मार्कर भेजते हो. वो सजेस्ट करता है कि पेशेंट को क्रोमोसोमल रिस्क कितना है, लो रिस्क, हाई रिस्क. लेकिन उससे ज्यादा आप वो रिपोर्ट में बाकी की चीजें भी ज्यादा क्लिनिकली अप्लाइड कर सकते हो. जैसे लो पैपे आएगा तो इम्पैक्ट प्लासेंटेशन का रिस्क रहेगा, आईयूजीआर का रिस्क रहेगा, प्रीक्लैम्सिया का रिस्क रहेगा. जैसे हाई एचपीएल आएगा तो वहां पे जीडीएम का रिस्क रहेगा. अब जनरली ये देख के आप पेशेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो या एंटिसिपेट कर सकते हो कि यू आर इन रिस्क ऑफ आईयूजीआर और यू आर इन रिस्क ऑफ जीडीएम. और मेनली प्लासेंटा हार्मोन का यूज जो भी है मार्कर्स के लिए. मार्कर्स के लिए एक सीधी बात ध्यान में रखिए, मार्कर्स आर नॉट अ डायग्नोस्टिक, इट इज अ ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट. जो पेशेंट ऑलरेडी उसको प्रीवियस डाउन बेबी है, जिसका एज मोर देन 30 है, 32 है, या उसके एंटी रिपोर्ट में मोर देन 2 सॉफ्ट मार्कर प्रेजेंट है, एनोमली में मोर देन 2 सॉफ्ट मार्कर प्रेजेंट है, तो आपको मार्कर्स पे डिपेंड नहीं रहना है. आपको जनरली उसको सजेस्ट करना है, एक तो आप सीधे से एनआईपीटी कर लो या डू द एमनियोसेंटेसिस, इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड.
Next is GDM. GDM is more common days now because late marriages, lifestyle changes है, heavy weight या weight gain ज्यादा है, high BMI है. GDM क्यों आता है? जो प्लासेंटा जो हार्मोन सिक्रेट करेगा, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, ये सब क्या करेंगे? एंटी इंसुलिन इफेक्ट करेंगे और लीड्स टू मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया. द गोल्ड स्टैंडर्ड इज डू द जीटीटी. जीटीटी कब करना है? 24 to 28 वीक्स. लेकिन जो पेशेंट प्रीवियस नोन है कि पीसीओ के बाद कंसीव हुए हैं, ऑलरेडी उनको इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है, और साथ में जिनका वेट ज्यादा है, जो एल्डरली है, और इम्पोर्टेंटली जिनके फर्स्ट डिग्री पेरेंट इज डायबिटिक है, तो उनको आपको एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही आपको उनको जीटीडी एडवाइस कराना है और उनका स्क्रीनिंग ठीक से कराना है. सो वी कंप्लीट आवर गायनेक ऑब्स्टेटिक पार्ट. इसमें तीन चीजें हैं. हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आप ये ध्यान रखो कि आप प्रिकंसेप्शनल थायराइड कंट्रोल रखो, जिससे आपका जिससे आपका ये फायदा होगा कि टॉक्सिमिया आने के चांसेस कम होंगे. सेकंड, जो आप प्लासेंटल हार्मोन जिसका आप स्क्रीनिंग करा रहे हो, स्क्रीनिंग पे रिलाय सिर्फ उसको क्रोमोसोमल मार्कर की तरफ मत देखो, उसको आप बाकी के जो आयुजीआर प्रेडिक्शंस है या प्रीक्लैम्पशिया प्रेडिक्शन है, उस रिपोर्ट को आप अप्लाइड कर सकते हो. थर्ड वन इज जीडीएम. जीडीएम में आप पेशेंट का एक ग्रुप बनाओ जो पीसीओ के बाद हो रहे हैं कंसीव, या आपको जिनका वेट ज्यादा है या हाई बीएमआई है या वो एल्डरली है, उनका अर्ली जीटीटी करा लो. उसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. और एक बात की रूटीनली एक प्रैक्टिस सही चीज होती है, जो भी जीटीटी इरिस्पेक्टिव टू जीटीटी और ब्लड शुगर, जो पेशेंट ओवरवेट है या आफ्टर पीसीओ कंसीव हुआ है, तो आप उसको प्रोफाइलेटिक मेटफॉर्मिन अप फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर आप स्टार्ट कर सकते हो. उसका फायदा यह है कि वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, एक्सेसिव वेट गेन है वो कम करने को आपको हेल्प करेगा. सो उसका जीटीटी नॉर्मल है तो भी आप उस पेशेंट में मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर सकते हो इन नाउ डेज सिनेरियो. So we jump on our second part, that is gynecological endocrinology. Best you know all the axis is hypothalamo-pituitary ovarian axis, जिसमें जो भी अल्टरेशन आएगा वो कॉज करेगा common gynecological problem, that is anovulation. I divided this in four part. Is a PCOD first one, second is anovulation due to hyperprolactinemia, fourth is primary ovarian insufficiency, and third one is primary hormonal dysfunction. So PCOD, you all know the PCOD, आपने सोनोग्राफी किया, उसमें PCOD आया, आपने हार्मोन भेजा, उसमें एक ही चीज देखना है आपको, LH-FSH रेशो. आप पीसीओडी किसे मार्क करेंगे? जिसका FH LHH रेशो इज मोर देन 2:1. आप जो भी ट्रीट कर रहे हो, आप ट्रीट कर रहे हो एपिसोड, यानी क्या कर रहे हो? वो रेशो आप करेक्ट कर रहे हो. जब आपके पास पेशेंट आएगा फर्स्ट टाइम, आप एल एच एफ एस एच रेशो देखो, समझो उसका रेशो 3:1 है. उसने आप एल एच कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? उसको डाइटरी चेंजेस किया, इंसुलिन बढ़ाया, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाया, उसका ओसीपीज दिया. उसके बाद आप जैसे उसको प्रेगनेंसी के लिए इंडक्शन करने वाले हो, फिर से आप एल एच एफ एस एच रेशो देखो. अगर वो पहले से रेशो कम हुआ है तो आप अच्छे से टिगर कर सकते हो इंडक्शन. तो यू रिमाइंड दैट कि आपको एपीसीओडी में ट्रीट क्या करना है? LH-FSH रेशो ट्रीट करना है. सेकंड की हाइपरप्रोडक्टिव साथ में आपको देखना है. और बेस लाइन सभी ही गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपको हाइपोथायराइडिज्म ठीक से ट्रीट करना है या एग्रेसिवली ट्रीट करना है. आपको प्रेगनेंसी रखना है तो उसको लेस देन 12.2.5 रखना ही है. नेक्स्ट वन इज प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी. ये पेशेंट कौन से आएंगे? आपको बोलेंगे कि मेरा मेंसेस तो ठीक था लेकिन इस 6 महीने में मेंसेस रेगुलर नहीं है, गोली लेती हूँ तभी मेंसेस आता है. वो आप कैसे जज कर सकते हो कि उसको प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज एफएसएच. इसमें एफएसएच इलेटेड रहेगा, एलएच स्लाइटली इलेटेड रहेगा, लेकिन मार्कली इलेटेड एफएसएच ही रहेगा. उसमें एस्ट्रोजन लो, प्रोलैक्टिन नॉर्मल, टीएसएच नॉर्मल, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल. आप उसको प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कर सकते हो. लेकिन आपको रूल आउट क्या करना है? प्रेगनेंसी, थायराइड एंड हाइपरप्रोडक्टिविटी. आपको इसमें एफएचएस फिर से 4 to 6 वीक के बाद फिर से कंफर्म करना है. सेकंड, हाइपरप्रोडक्टिविया. प्रोडक्टिन आपको रेंजेस पता है, 20 मोर देन 25 आपको हाइपरप्रोडक्टिविया है, दैट कॉजेस अनवोल्यूशन. उसमें अनवोल्यूशन में आपको प्रोडक्टिन के लिए आप डोपामिन एगोनिस्टिक जैसे कैबरगोलिन दे सकते हो वीकली. लेकिन अगर प्रोडक्टिन लेवल मोर देन 100 है तो आप क्लू कर सकते हो कि ये पिट्यूटरी कॉज हो सकता है. तो आप उसको आप उसका एमआरआई कराना है, कोई पिट्यूटरी कॉज है क्या वो देखना है. सेकेंड थिंग कि आप समझो एक पेशेंट है, उसका प्रोलैक्टिन लेवल 40 है और अल्ट्रा टीएसएच है 5. तो आप क्या करोगे? टीएसएच नॉर्मल, इज नॉट प्रेग्नेंट, और आपको प्रोलैक्टिन बढ़ा है इसलिए आप कैबरगोलिन स्टार्ट करोगे. लेकिन अगर आप वो अल्ट्रा टीएसएच को फिर से कंप्रेस करेंगे अप टू 2.5 विथ लो डोज थायरोक्सिन,
और उसके साथ आप प्रोलैक्टिन के लिए ये प्रोलैक्टिन के लिए कैबरगोलिन दोगे तो वो अच्छे से इफेक्ट करेगा। सेकंड, ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि प्राइमरी अमेनोरिया है, मेनार्क हुआ ही नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप है लेकिन मेनार्क नहीं है। आप कैसे देखोगे कि ये जेनेटिकल है या हार्मोनल है? फर्स्ट थिंग कि आप सीधे उसका एफएचएस भेजो। अगर उसका एफएसएच वेरी हाई विथ सोनोग्राफी रिपोर्ट स्मॉल ओवरीज, तो आपको कैरोटाइपिंग करना ही है, तभी आप उसको डायग्नोस करेंगे। जैसे ही लेस देन 40 ईयर वुमेन है और उसका सडनली 6 मंथ अमेनोरिया है, अगर वो अर्ली मेनोपॉज के पास जा रही है तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? अमेनोरिया प्लस एफएसएच मोर देन 20 to 25 इज सस्पेक्ट प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी। नेक्स्ट वीक ये सब मैंने कुछ चार्ट क्रिएट किए हैं कि आपको मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। समझो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी आप प्रेडिक्ट करते हो, लेकिन उसका एफएचएस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको क्लिनिकल जजमेंट कैसे लेना है। फर्स्ट, कि उसका ओवर इन वॉल्यूम ठीक है लेकिन एफएचएस लेस देन 10 है, तो आपको ओवरी फंक्शन लाइकली होता है, उसको आप ओवुलेशन इंडक्शन कर सकते हो। अगर उसका एफएसएच 10 to 20 है तो डिमिनिश रिजर्व है, तो आपको लिमिटेड रिसोर्स रहेगी, आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए एडवांस कर सकते हो। अगर मोर देन 25 है या 40 है तो वो एस्टेब्लिश होगा कि ओवारिन पूरा फेलियर है, आपको डोनर oocyte ही लगेगा। बाकी फ्लक्चुएट रहता है तो आपको रेयर रिस्पॉन्स रहेगा, आपको उसको भी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए एडवांस होना पड़ेगा। बाकी सब चीजें तो फीमेल के लिए हुई। मेल के लिए मैंने एक पार्ट रखा है। जनरली ओपीडी में एजोस्पर्मिया का पेशेंट आते हैं कि आपको क्या करना है, क्या रिपोर्ट करना है। एजोस्पर्मिया में मेन दो ही रिपोर्ट है, फर्स्ट इज एफएसएच मोर इंपॉर्टेंट एंड टेस्टोस्टेरोन। अगर एफएसएच उसका 10 है, लेस देन 10 है, तो लाइकली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा। आप देखो वेरिकोसिल है या एक टेस्टिकुलर स्कैन करा लो, वहां वहां से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो देखो। 10 to 15 है, उसका पार्शियल डैमेज है, मम्स की हिस्ट्री होगी या कुछ होगा, उसके आप टीसा कर सकते हो। 25 के आगे है तो जनरली वहां पे स्पर्म नहीं मिलेगा, आप सीधा उसको एक बायोप्सी करके आप डोनर स्पर्म के लिए जा सकते हैं। ये जो भी चीजें हैं वो जनरली हम इनकाउंटर करते हैं अपनी रूटीन ओपीडी में, जिसके आप रिपोर्ट के इंडोक्राइन रिपोर्ट से आप क्लिनिकल जजमेंट ले सकते हो। बेसिक टेक वही मैं चीजें करो जो ऑब्स्टेटिक में थायराइड ठीक से सप्रेस करना है, प्लासेंटल हार्मोन जो भी है वो सिर्फ मार्कर के लिए नहीं है, वो आपको प्रेडिक्ट भी करेंगे। थर्ड वन, जीडीएम को थोड़ा सा अभी के एरा में आपको अर्ली डिटेक्ट करना है, या प्रोफाइलिटिक भी आप जा सकते हैं। रही कहने की बात पीसीओ में, आपको एलएच एफएसएच रेशो ठीक से करना है। हाइपरप्रोलेक्टिया में आपको हाइपोथायराइड भी देखना है, साथ में पिट्यूटरी कॉज है वो भी आपको चेक करना है। प्राइमरी ओरियन फेलियर प्राइमरी ओरियन फेलियर में आपको एफएसएच ठीक से देखना है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उससे आपका प्रिडिक्शन ये रहेगा कि इसमें ट्रीटमेंट कितना काम करेगा। थर्ड वन, मेल इनफर्टिलिटी में आपको एजोस्पर्मिया या ऐसी कोई चीज आए तो आप ऑब्स्ट्रक्शन और गोनेडल फेलियर के लिए आपको सबसे जरूरी बात है कि आपको एफएसएच ठीक से देखना है। तो आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू फॉर